دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ لکھنؤ سے ندیم بھائی جی، آپ کہاں سے بولے سر؟ میں بہار سے۔ حضرت ایک بات پوچھنی تھی آپ سے جی کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت کروائی تو حضرت میں حرم شریف میں نماز پڑھ سکتے ہیں امام کے پیچھے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت اگر میں عصر کی نماز کیسے پڑھوں گا؟ کیا چیز؟ عصر کی نماز میں کیسے پڑھوں گا حضرت؟ کیونکہ جو ہے وہ جس وقت وہ لوگ نماز کھڑی کرتے ہیں اس وقت تو حنفی حساب سے ٹائم بھی نہیں چالو ہوتا ہے۔ دیکھیے دو کول جیسے ہے نا، ایک مثل اور مثلین، سایہ اصلی کے حساب سے، سایہ اصلی کے حساب سے جی چھوڑ کر کے دو مثل ہے سے اثر، دوسرا مثل سے اصل شروع ہو جاتا ہے ایک مثل کے بعد، اور دوسرا مثل پہ بھی پر ہمارے کا مطلب اثر شروع ہوتا ہے۔ دونوں مسلک یہ نہیں ہے کہ وہ مسلک خراب ہے، عملی مسلک ہو یا شافی مسلک غلط نہیں ہے، سمجھے نا؟ نہیں غلط تو نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امام مالک ہو چاہے امام شافعی ہو چاہے امام احمد بن حنبل ہو، تو یہ مسئلہ چاروں حق میں ہے، لیکن حضرت ہم لوگ تو حنفی ہیں تو ان لوگ کے پیچھے عصر کی نماز تو ہم لوگ کی شروع ہی نہیں ہوتی ہے، حنفیوں کا ٹائم تو شروع ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ حنفی کے نزدیک تو نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہے، اور جب نماز کا وقت نہیں ہے تو نماز کیسے ہوگی پھر؟ ایک منٹ سنیے نا، وہاں پر جو امام ہے اس امام کی ابتدا کرتے ہوئے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ چاہے امام اکثر ہیں اور ان کے حساب سے بھی مطلب جو جس وقت اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ان کی نماز نہیں جب ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جائے گی وہاں تو پر۔ حضرت نہیں اس حساب سے تو پھر ہم کو رفع دین بھی کرنا پڑے گا، پھر ہم رفع دین نہیں کر سکتے؟ نہیں وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو پھر جب وہ ضروری نہیں ہے تو پھر یہ ضروری کیسے ہے؟ پھر ہم ان کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ پھر پھنس جائے گا، جب وہ ایک مسئلہ چھوڑ رہے ہو تو ایک مسئلہ آپ پکڑ کیوں رہے ہو؟ پھر جب ہم حنفی ہیں یہاں پہ تو وہاں جا کے ایسا تو نہیں حنبلی ہو جائیں گے یا مالکی ہو جائیں گے یا شافعی ہو جائیں گے، ہم حنفی وہاں پہ بھی حنفی یہاں پہ بھی ہیں۔ وہ حدیث ہے سمجھے، اور حدیث میں ضعیف اور صحیح کا مسئلہ ہے، یہاں پہ اثر کا وقت جو ہے نا جی ٹائم کا کوئی حدیث نہیں ہے کہ کس ٹائم پڑھا جائے۔ تو حضرت یہ فقہ حنفی میں تو جو ہم ان کو حنفی مانتے ہیں، فقہ حنفی کو مانتے ہیں، تو اس میں تو جو ٹائم ہم کو بتایا گیا تو حضرت ہماری نماز اسی وقت شروع ہوگی نا؟ بھائی حدیث کو آپ پکڑیے، پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات یہ سنیے کہ حدیث کے حساب سے جو رفعین اور ترک رفعین کی جو حدیث ہے سمجھ رہے ہیں؟ جی جی تو ایک منٹ پانی پیے گا ہوں۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ حدیث ہے، سمجھ گئے؟ اور نماز 4 بجے پڑھی جائے یا 3 بجے پڑھی جائے یا 3:30 بجے یا 5 بجے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ حدیث نماز کو ہونے کے لیے تو ایک فرائض میں سے فرائض ہے کہ نماز کا وقت ہونا، جی نماز کا وقت ہونا یہ فرائض میں سے ہے۔ ہاں تو ہم حنفیوں نے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں انہوں نے ہم کو نماز کا وقت اور فرائض کے طریقے ہم کو بتا دیا، تو وہاں جا کے ہم حنفیت چھوڑ دیں، پھر وہاں جا کے ہم حنفیت چھوڑ دیں، شافعی ہو جائیں مالکی حنبلی ہو جائیں۔ کسی وقت کسی کی ابتدا کرنے سے ٹوٹنا نہیں ہو جاتا یا یہ نہیں ہو جاتا ہے، سمجھے؟ نہیں ہوتا، وہاں پہ چھوڑنا پڑے گا نا پھر ہم کو، حنفیت چھوڑنی پڑے گی تبھی تو حنفی ہیں، حنفی ہی رہیں گے، تو وہاں ترک کرنا پڑے گا نا پھر ان کے، جب ہم وہاں پہ بھی حنفی رہیں گے
تو इमाम आजम अबू हनीफा के टाइम के हिसाब से हम नमाज पढ़ेंगे ना, फिर तो उनका नहीं, टाइम वहाँ पर- इख्तिलाफ हो रहा है ना फिर यहाँ पे। एक मिनट फिर आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि मतलब मजमे के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना, ये भी तो हदीस देखा जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपको- एक मसला दोनों में इख्तिलाफ है कि इमाम शाफई के नज़दीक जब जो है वजू करने के बाद औरत टच हो जाए तो वजू टूट जाता है, और हनफियों के नज़दीक नहीं है। उसको नहीं छेड़िए। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ दोनों में फर्क क्या है। जैसे उनके नज़दीक वजू टूट जाता है और हम हनफियों के नज़दीक नहीं टूटता है, तो इसमें इख्तिलाफ जब है तो हम अपने हनफी हैं तो हमारे औरत छू जाए तो हम नमाज वजू हमारा नहीं टूटेगा। लेकिन वहाँ जाके अगर हम शाफई हो गए और नमाज वजू करके अगर खुदा ना खाता औरत छू गई हमसे तो हजरत तो हमारा वजू टूट जाएगा। आपका मिसालें गलत हो गया, वहाँ हम साफी क्यों होंगे? अरे हम बली हो जाएंगे जिस मतलब हम बदली क्यों हो जाएंगे? हम क्यों हम होंगे? हमसे छोड़ेंगे ना तब तो उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नहीं, उसको तोड़ना नहीं कहा जाता है, बल्कि जमात के साथ नमाज पढ़ना अफजल तरीन कहा गया है। ये हदीस है, जमात के साथ। उस जमात की इक्तिदा करने के लिए हम इक्तिदा करेंगे उस वक्त। उसको हनफियत तोड़ना या साफियत तोड़ना नहीं कहा जाएगा। ये क्यों नहीं कहा जाएगा? जबकि हमको तो हनफियत नहीं, सुनिए ना, हमको जब एक मसला हमको मिल गया है इमाम आजम अबू हनीफा के, हम उनके मुकल्लिद हैं, तो हम तो उन्हीं के मुकल्लिद ना रहेंगे। तो वहाँ जाके हम जब वहाँ पहुँचे तो हमारे इमाम के नज़दीक तो असर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ, तो हम उनकी इक्तिदा कैसे कर लें? ये मसला समझने वाला है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो या समझा नहीं पा रहे हो? नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं बिल्कुल हम समझ रहे हैं। जैसे मैं कहीं पे भी हूँ, अगर समझे होते तो आप हदीस में और इमामों के कौल में आप फर्क के समझते। इमाम को कौल और हदीस में हदीस को देखना पड़ेगा ना, आपको तरजीह किसको मिलेगी? हदीस को तरजीह मिलेगी, समझे कि नहीं? और यहाँ उस हदीस में भी जिस हदीस से जो वक्त असर का वक्त लिया गया है वो सराहतन कोई हदीस ऐसी नहीं है, बल्कि अल्लाह के सिर्फ इस तरह की बात है कि मतलब मगरिब और असर के दरमियान कहाँ तक चला करते थे, उस हिसाब से वो देखा जाता गया है। सराहतन कोई हदीस नहीं है कि 3 बजे असर की नमाज हो या 5 बजे हो या 4 बजे हो। जी बिल्कुल टाइम की बिल्कुल मुताबिक बिल्कुल हद नहीं है, बिल्कुल टाइम की हद नहीं है। लेकिन एक जो मसला होता है कि जैसे टाइम मौसम के हिसाब से वक्त बदलता है ना जी, मौसम के हिसाब से वक्त बदलता है। अब जैसे जाड़े में मगरिब जल्दी हो जाती है, 6 बजे हो जाती है, कहीं कहीं 5:30 बजे हो जाती है, तो क्या उसी वक्त सुनिए, आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, आप समझना चाहेंगे तो समझ जाइएगा। देखिए एक मिसाल आपको दे देता हूँ मैं। अरे चुप हो। देखिए मिसाल आप इतना समझिए कि जिस तरीके से अभी अपने लोग इंडिया में अभी शाम है ना, हाँ, और इस वक्त तो अपने लोग क्या करेंगे, अभी तो शाम है तो खाए पिएंगे, रमजान के मौसम की हिसाब लीजिए, अभी खाए पिएंगे। लेकिन अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में अभी दिन है, जी जी, समझ गए? हाँ हाँ बताइए। और वो अगर हम यहाँ से अमेरिका जाने के बाद कहेंगे नहीं हमको तो इस वक्त रात होती है तो हम खाए पिएंगे, और वहाँ इंडिया में जो दिन होती है तो हम उस हिसाब से यहाँ पे हम दिन के रात में हम रोजा रखेंगे, तो वो चलेगा? ये तो बिल्कुल अहमकाना बात कर रहे हो हजरत, बिल्कुल अहमकाना वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल अहमकाना वाली बात, समझ नहीं ये बिल्कुल बात कर रहे हैं, बिल्कुल अहमकाना वाली आपने बात करी है। बिल्कुल आप लोग जो है मुफ्ती होकर के अपने इतनी अहमकाना बात की है कि आवाम होकर मुझे बहुत तक हंसी आ रही है, समझ लीजिए। तो क्या बताया जाए, अब इंसान आजाद होने लगे, अब इंसान हेलो हाँ, फोन तो काटा सर, फोन इसलिए काट रहा हूँ जब बात आपको समझ में नहीं आ रही तो अगर एक मसला और बता दिए, एक मसला और, जैसे आप कह रहे हैं कि सुनिए ना नमाज का टाइम जैसा आप बता रहे हो, पीछे हमको नमाज नहीं पढ़ना है, आप बोल दीजिए ना। अच्छा सुनिए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर। वो तो मैं आप लोगों को पहले से जड़ से जानता हूँ मैं, आप लोग चाहते हैं वहाँ रह करके भी आपको जमात की नमाज से महरूम रहते हैं। अच्छा ये बता दिए, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना जरूरियात दीन में से है? जी जरूरियात दीन में से है, मतलब जमात के मैं जमात का बड़ा होना क्या हक के होने की दलील है? जमात का अगर बड़ा होना हक पे होने की दलील है? क्या आपके पास क्या दलील वो हक पर नहीं है? मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे वो पूछ ही नहीं रहा था हक पे है कि नहीं वो हक पे है। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि जैसे कि आपने कहा कि नमाज का टाइम जो है वो हदीस में नहीं है, वो हक पर नहीं है।
तो पहले भी बताइए, नमाज का टाइम होना उसमें जो है हदीस से साबित नहीं है, आप कह रहे हो। तो इमाम आज़म ने जो हमको टाइम निकाल के दिया है वो हदीस के खिलाफ है? हदीस खिलाफ नहीं है। हाँ, तो फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह निकाले वो हदीस खिलाफ है? तो हम तो हनफी है ना, मैंने कहा आपका वो खिलाफ है, तो हम तो हनफी है। मैं तो बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मैं तो हनफी हूँ ना। इतना समझ जाइए, अगर किसी वक्त अगर हम उनकी इक्तिदा कर ले तो क्या, अगर चलिए तो क्या हम गुनहगार हो गए? तो हमको छोड़ना पड़ेगा ना, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हनफियत छोड़ के मैं इमाम शाफी के मतलब छोड़ेंगे, नमाज की इक्तिदा करेंगे, बस हम छोड़ेंगे। तो नमाज की क्यों? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा था इतनी देर से। हम रहेंगे हमेशा हयात रहेंगे। तो हमारे इमाम के नजदीक तो नमाज का टाइम शुरू ही नहीं हुआ ना, हमारे इमाम के नजदीक तो नमाज का टाइम शुरू ही नहीं हुआ, तो हम कैसे पढ़ लें फिर? अच्छा, अभी मैं घर पे आया हुआ हूँ, मेरे पास उतना बहस करने का वक्त नहीं है। मदरसा में रहूंगा तो बात कर लीजिएगा, आज से 4-5 बुध के दिन के बाद बात कर लीजिएगा, मैं फ्री रहूंगा। छोटा सा मसला आप बता दिए, फिर इसके छोटे से मसले के लिए आपको फिर फोन करें, आपको तकलीफ दें, हमको अच्छा नहीं लगेगा बार बार फोन करते हुए आपको। आप बिजी रहते होंगे माशाल्लाह।